So hello guys, how are you all? Hope you all are doing well. And guys, today we are going to start our new chapter, audit under computerized information system environment. So let's start guys. गाइस इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको कि इसमें जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगा वो टिपिकली लैंग्वेज होगी प्रैक्टिस मैनुअल पीएम और पास पेपर्स के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उनमें से ये लैंग्वेज होगी। एंड सेकंड थिंग, हम सेम पैटर्न इस वीडियो में भी फॉलो करेंगे जैसा कि हमने अपनी पिछली प्लेलिस्ट में किया है। I've selected around 5 to 6 questions of this particular chapter and we have to complete and by completing these 5 to 6 questions we are going to complete our 90% above of this chapter. So guys, stay tuned and keep watching this video to gain confidence in the computerized information system environment. So let's start guys. Chapter is audit under CIS environment. तो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। गाइस क्वेश्चन भी मैं इसमें देखना, आप पूरा डिटेल में क्वेश्चन लिखूंगा कि वो क्वेश्चन ही हमारे को इस चैप्टर में वो ऐसा पूछता है कि हमें वहाँ पर पता ही नहीं लगता है कि क्या एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू राइट टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो मैं पूरा डिटेल में जो क्वेश्चन जो पीएम में या कहीं पर भी स्टडी मैट में या सजेस्टेड में जो भी पास पेपर्स में दिया होगा वो पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो देखते हैं गाइस। क्वेश्चन के लिए हम दूसरा पेन यूज़ करते हैं। व्हाट इज एन ऑडिट ट्रेल। गाइस सबसे पहला ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है और सबसे पहले वो पूछता है व्हाट इज़ एन ऑडिट ट्रेल। फिर उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है ब्रीफली डिस्क्राइब the special audit technique or special audit technique using the computer as an audit tool। तो गाइस सबसे पहले वो हमारे से पूछ रहा है व्हाट इज़ एन ऑडिट ट्रेल। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर आंसर। द वर्क ऑफ ऑडिटर is hardly affected if it is hardly affected if audit trail is maintained। That is, it's still possible to relate on a one-to-one basis the recording of
each transaction from the stage of input to output। एक बार गाइस अपने नोट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद एक बार हम समझेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, द वर्क ऑफ ऑडिटर इज़ हार्डली अफेक्टेड इफ ऑडिट ट्रेल इज मेंटेन, दैट इज इट्स स्टिल पॉसिबल टू रिलेट ऑन ए 1-to-1 basis द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन फ्रॉम द स्टेज ऑफ इनपुट टू मैनुअल इनपुट। इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम it is possible, in a manual accounting system it is possible for the auditor to locate all the documents at each successive stage. In manual accounting system it is possible for the auditor to locate all the documents at each successive stage to help him for examining documentation, cross-referencing and totaling। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर एक न्यू पॉइंट आने वाला है गाइस, पॉइंट नंबर 3, with the advent or invention of modern computer system, now it's not possible to find documentation at each stage. It involves too much independence by management. It involves too much independence by management. अब जो मैं वर्ड लिखूंगा उसको ध्यान से देखेंगे गाइस। It involves too much independence by management on exceptional report, which affects audit trail। इसी से लिंक एक it has to be seen that at various stages it has to be seen that at various stages there is no documentation। Example, wait a second guys। Example, when sales order
entered online, there is no evidence, when sales ordered entered online, uh, when sales ordered are entered online, there is no evidence of when sales orders are entered online, there is, ऐसे लिखते हैं गाइस इसको, when sales order entered online, there is no input document for its existence. First example. Second example is calculation of discount and interest is to be calculated by software without any authorization. ठीक है गाइस, डोंट वरी, हम इसको पूरा समझेंगे गाइस, बट प्लीज़ एक बार अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे हैं, 2 पॉइंट तो उसमें सेम थे जिसमें ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व थी, फिर थर्ड पॉइंट आया कि जो मॉडर्न मशीनरी आई है उसमें ऑडिट ट्रेल जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। तो अब गाइस एक बार क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एन ऑडिट ट्रेल, वो पूरा जो ऑडिट ट्रेल का था वो यहाँ पर पूरा इस पेज पे पूरा ख़त्म हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन ने ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पेशल ऑडिट टेक्निक यूजिंग द कंप्यूटर एज एन ऑडिट टूल। गाइस अब ऑडिट ट्रेल तो हमारे पास है नहीं क्योंकि मॉडर्न सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो कहता है ऑडिटर कैसे अपनी जो है ऑडिट एग्ज़ामिन करेगा, वो कौन सी टेक्निक्स एडॉप्ट करनी पड़ेंगी उसको कि वो चेक कर पाए पूरा अपना जो एंटिटी में जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए गाइस उसको लगवानी पड़ेगी स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स। These techniques involves the use of computer as an audit tool. These techniques involves the use of computer as an audit tool. It is also called a audit through computer. These techniques are adopted for following. Point number 1, for overcome the loss of audit trail. Second point, for conducting
audit in an effective and efficient manner in less time or low cost. Third and the last point, for checking the programs whether they are functioning correctly. तो ये गाइस स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स होती हैं। अब इसमें दो पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ गाइस स्पेशल ऑडिट टेक्निक, जो ये टेक्निक्स हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं गाइस। 2 टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला ऑडिट सॉफ्टवेयर, सेकंड टाइप ऑफ आवर सेट। इन शॉर्ट प्यार से गाइस हम इससे बोलेंगे सेट। सेकंड पॉइंट इज टेस्ट डेटा। तो आइए गाइस देखते हैं एक बार। गाइस ऑडिट सॉफ्टवेयर, these are the generalized computer programs used by the auditor in collecting evidences। तो ये गाइस जनरलाइज कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑडिटर यूज़ करता है एविडेंस कलेक्ट करने में। अब इसके भी आगे टाइप होते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा पर्पस written programs। second point general package programs। third point utility programs। लास्ट पॉइंट सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आइए गाइस एक बार देखते हैं इसको। पर्पस रिटन प्रोग्राम्स, इसमें क्या बोलता है वो, these are the specifically designed programs suitable for use in particular type of industry or company, not
useful at all client places because of not useful at all client places because of its customization, because of involvement customization involves huge cost. तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पर्पस रिटन प्रोग्राम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब आते हैं जनरल. General package programs. These are the programs used for creating files, reading and analyzing data, and for reporting purposes. Can be used at multiple clients, involves less cost than the utility program. Used for utility programs used for data processing functions such as sorting, creating and printing files. And the last point is system management program. Enhanced productivity tools that are typically a part of sophisticated operating सिस्टम. तो गाइस ये हमने यहाँ पर ऑडिट सॉफ्टवेयर अपना ख़त्म करा है. ऑडिट सॉफ्टवेयर था ये, हमने इसके साथ 4 पॉइंट लगा के ख़त्म करा है. अब हम बात करते हैं टेस्ट डाटा की. It involves entering a set of data by auditor into the entity's computer system and compare the results with predetermined results. फर्स्ट पॉइंट टेस्ट डाटा का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा. इट इन्वॉल्व्स एंटरिंग ए सेट ऑफ डाटा बाय ऑडिटर इनटू द एंटिटीज कंप्यूटर सिस्टम एंड कंपेयर द रिजल्ट्स विद द प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स. इट यूज्ड to test
specific characteristics of the data। अब गाइस इसके सब पॉइंट हमें देखने होंगे टेस्ट डाटा के, तो इसी पेज पर हम देखते हैं। टेस्ट डाटा में पहला पॉइंट आता है गाइस टेस्ट पैक, और दूसरा गाइस आता है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, प्यार से बोलते हैं ITF। तो देखते हैं गाइस टेस्ट पैक में क्या होता है। इन दिस ऑडिटर enters a set of data into the entities computer system, but not during normal processing cycle। ठीक है गाइस, आप देखते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इट इन्वॉल्व्स द एंटरिंग of test data during normal processing period by creating a डमी गाइस, डमी आपको पता होगी गाइस, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे। इट इन्वॉल्व्स एंटरिंग ऑफ टेस्ट डाटा ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेसिंग पीरियड बाय क्रिएटिंग डमी यूनिट एंड आफ्टर these entries are to be removed। एक पॉइंट और आएगा गाइस, यूज्ड इन ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। अभी हम देखेंगे बाद में गाइस। तो इसी के साथ गाइस ये 3 पेज पे हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आया है। तो गाइस इसमें कोई भी जो आप सोचें कि मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ या क्यों लिख रहा हूँ, गाइस नहीं होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है गाइस, नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में जो है मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये पर्टिकुलर 3 पेज आपको मिनिमम इसमें से कुछ वर्ड रिड्यूस कर सकते हो, बट ये गाइस मिनिमम आंसर है एक, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे।